Good afternoon, students. Today we discuss about German measles, which is also known as rubella. Yesterday I teach you about the measles. So the subheadings that we are discussed here, like definition. So at very first we discuss about the introductory part of rubella, and then we discuss about the definition. After that, mode of transmission, signs and symptoms, treatment, and last portion is prevention and control. So let's start. So now let's come to the introductory part of rubella. Now what is rubella? Rubella is also known as German measles. It is a 3 days viral infection, and it is a slow viral infection. Actually, it infect the this viral infection is characterized by the enlargement of cervical lymph node, and it is most common in older children, which are the age group of 3 to 5 years of age, and its causative agent is myxovirus, and its incubation period is 14 to 21 days. So it is the introductory part. Let's come to the definition portion. So here I wrote for you the definition of German measles is also known as rubella or 3 days measles. This is slow viral infection. It is a viral infection characterized by the enlargement of cervical lymph node, most common in older children. Its causative agent or its causes by myxovirus. Its incubation period is 14 to 21 days. So it's a definition of rubella. Rubella क्या होता है? Rubella एक 3 days वायरल इन्फेक्शन है जो कि किससे कैरेक्टराइज किया गया है? सर्वाइकल लिम्फ नोड के इन्लार्जमेंट कर देता है. मतलब जब ये अकर होता है, जब ये होता है, तब यहाँ इसके होने की वजह से इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा सर्वाइकल है वो क्या हो जाता है? वहाँ इनलार्ज हो जाता है. वहाँ के जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं. ओके. और ये ज़्यादातर ओल्डर चिल्ड्रन को देखने में मिलता है. मतलब जैसे 3 से 4 साल के एज ग्रुप होते हैं उनको. एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द मैक्सोवायरस. किसकी वजह से? इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? मैक्सोवायरस. एंड इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, जब ये इंक्यूबेट करता है, मीन्स व्हेन इट स्प्रेड और इट मे बी ग्रोथ और इट्स क्रिएट देयर एम्पायर. तो ये कितना टाइम लेता है? इसका टाइम ड्यूरेशन है 14 to 21 days. Okay, so this is the definition of rubella. Now we continue the mode of transmission. The mode of transmission is yesterday I teach you about the measles and mumps. So in that diseases, there are 3 ways of mode of transmission, which is droplet infection, direct contact, indirect contact. These are the 3 ways of mode of transmission that we study in the measles. But in this rubella, the mode of transmission have several contact. It is the very first mode of transmission is droplet infection, and then it is contact with infected person or sharing food items with infected person. जब हम अगर जैसे हमें खाने पीने से भी लग जाता है, जैसे हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ लंच कर रहे हैं या जो भी है शेयर कर रहे हैं, तो जो अगर उसको है तो वो हमारे इसमें भी आ जाएगा. मतलब जो होस्ट है उसको वेक्टर चाहिए, वेक्टर के थ्रू वो किस में हमारी जीन्स में भी आकर अप्लाइड हो जाता है. तो इसीलिए इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन थोड़े से डिफरेंट है.
तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहला क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, the second one is contact with infected person, okay, sharing food item with infected person, and the fourth one mode of transmission is infection from pregnant woman, and its bloodstream. Okay, these are the mode of transmission. The number one is droplet infection. As I told you previously that droplet infection is come from the sneezing and coughing. Okay, ये कैसे ट्रांसफ़र होता है? स्नीज करने से, कफ से या फिर फॉर्मेट्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है या स्प्रेड होता है. देन कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी ऐसे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आना जो कि इन्फेक्टेड हो ऑलरेडी और फिर उसके कांटेक्ट में आके ये आपको भी होने के चांसेस होते हैं. ठीक है. देन द थर्ड वन इज़ sharing food with items with infected person, those people who are infected with rubella, if you share or if you taken their food तो वहाँ पे भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो उस कारण से आपको भी वो डिज़ीज़ कॉज हो जाएगी. ओके. एंड देन इन्फेक्शन फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड स्ट्रीम, अगर ये किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हुआ है या किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? वो उसके ब्लड स्ट्रीम में होकर बेबीज़ को भी हो सकता है. मतलब आफ्टर द बर्थ ये एक्टिव हो जाएगा तो उस कारण से बेबी को भी कॉज हो सकता है. ओके, these are the mode of transmission. Now we have come to the sign and symptoms of rubella. Now what are the sign and symptoms? The number one symptom of rubella is not only the swallowing, it's swollen of the lymph node of cervical. मतलब सर्वाइकल के यहाँ पर जितने भी लिम्फ नोड होंगे वो उसमें सॉलन मतलब वो सूजन आ जाएगी वहाँ पर. ठीक है. और रुबेला की वजह से रैशेस होंगे. मैं आपको लिख कर देती हूँ. And symptoms, the first sign and symptoms is swollen and cervical lymph node. Okay. Second sign and symptoms is rubella, rash,
beings on the face and spread downwards the rubella rash is after the first sign of illness that a parent noticed. Okay, then the third sign is malaise. Fourth sign is cough. Fifth sign is muscles. Which spread from face to trunk and extremities. And then headache. हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, so these are the rubella sign and symptoms. Let's discuss about each of them. First of all, what we have seen is swollen and under the cervical lymph node. हम कहाँ पर सर्वाइकल लिम्फ नोड में क्या आ जा रहा है, टेंडरनेस आ रही है, एज वेल एज वहाँ पे सॉलन हो रहा है, मतलब सूजन आ रही है देखने को मिलेगी. उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, रुबेला के जो रैश है वो कहाँ पर, फेस में, ठीक है, फेस के डाउनवर्ड साइड में, ओके, डाउनवर्ड पोर्शन में होंगे. और ये रैश कहाँ तक होंगे, ये फर्स्ट साइन अपीयर होगा. मतलब अगर रैश दिख रहे हैं तो हम इससे ये जो साइन है इसे समझ सकते हो. मतलब पेरेंट्स इसको ही सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इट इज़ अ साइन ऑफ रुबेला और इट इज़ अ साइन ऑफ जर्मन मीजल्स. ओके, देन मलेज होगा, कफ होगा, ठीक है. फिर मसल्स जो होगी वो फेस की और ट्रंक एरिया, मतलब जो हमारा धड़ जिसको हम कहते हैं उस एरिया को कहते हैं ट्रंक. ओके, एंड एक्सट्रीमिटीज़ हमारे हैंड्स और लेग्स. तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्प्रेड होगा, इसकी मसल्स क्रैम्प होगी, है ना, और ये स्प्रेड होगा. हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एज वेल एज माइल्ड कंजक्टिवाइटिस भी होगा, रनिंग नोज भी होगी, और पेनफुल स्वेलिंग होगा, पेनफुल, और जॉइंट्स में भी पेन होगा. ठीक है, तो ये क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं. ओके, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रुबेला इज दीज. सो ये सारी चीज़ें हमको रुबेला में देखने को मिलेगी. और जो फर्स्ट साइन हमको देखने को मिलेगा इज़ अ रैश. ठीक है, पेरेंट्स जो भी हैं वो नोटिस सबसे पहले क्या करते हैं, ये रैशेस ही हमको देखने को अपीयर होते हैं जो कि डाउनवर्ड साइड में होते हैं. ठीक है, so these are the sign and symptoms. Now we have come to the treatment of rubella. So treatment of rubella, let's first discuss about it. Antipyretics should be given in the rubella because of fever को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, दैट इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए. मतलब हम जब एंटीबायोटिक्स हम तभी देंगे जब सेकेंडरी इन्फेक्शन, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट हम ट्रीट करेंगे, उसके बाद फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स जो हम दे रहे हैं
वो उन पर आएंगे। तो एंटीबायोटिक्स हम सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए देंगे। ओके, देन एंटीवायरल ड्रग्स सच एज एक्रोवायरल, ठीक है, इट्स ACYLORVIR, ओके। एंड देन सेडेटिव जैसे प्रोमिथाजाइन टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, तो सेडेटिव्स देंगे। इसमें सेडेटिव में हम मेडाजोलम नहीं देंगे। मेडाजोलम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो सिरिंज पंप में देते हैं और वो बच्चों को नहीं दिया जाता है, सो दैट हम यहाँ पे प्रोमिथाजाइन देंगे। एंड देन एंटीहिस्टामिन ड्रग देंगे टू रिलीव पेन, ईचिंग और स्वेलिंग। जितनी भी स्वेलिंग और ईचिंग वाली जो कंडीशन हो रही है, जितना भी वहाँ पे स्वेलिंग हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देंगे। एंड गिव डेली बाथ, हमको उनको क्या ये क्या बोलना है, हमको हमेशा उनको एडवाइस ये करना है कि आपको हाइजीन मेंटेन करके रखना है, आपको डेली बाथ लेना है, ठीक है। देन हम उनको बोलेंगे लोकल एप्लीकेशन, जैसे कि कैलामाइन लोशन टू रिलीव ईचिंग, है ना। जैसे कैलामाइन लोशंस हम लगाते हैं, एक लोशन होता है, इट्स पिंकिश इन कलर, एंड दोज लोशन इज़ अप्लाइड फॉर ईचिंग एंड रैशेस। सो ब्लिस्टर्स आते हैं तब उन लोशंस को लगाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ईचिंग को, ठीक है। नेल शुड बी कट एंड शॉर्ट, हमेशा जो है ना नेल्स हमेशा कट होने चाहिए और शॉर्ट रहने चाहिए। हमेशा हाइजीन मेंटेन रखना है उनको, बेड रेस्ट प्रॉपर करना है। और जो चिल्ड्रन है वो स्कूल गोइंग है तो उसको अलाउ नहीं करना है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो दीज आर दी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जब भी हम ट्रीटमेंट लिखते हैं तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट से प्राइमरी ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हुए हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक आना है। सेकेंडरी में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। आई रोट हियर फॉर योर इजी गोइंग, है ना। हम यहाँ पर डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि एंड जो ये इसमें से जो कुछ ड्रग्स हैं वो शायद आप लोगों को पता ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ तो आपको ध्यान में रहेगा। Okay, the treatment of AIDS is antipyretic should be given to reduce the pain, okay. Reduce the fever. Antibiotics to treat secondary infection, antiviral, drug such as Alsaprolol, sedative should given, such as promethazine, to relieve discomfort, antihistamine
and to relieve pain, itching, and swelling. Give bath daily. Then local application of calamine to relieve itching, nails should be cut short. Next is maintain hygiene. Okay. So, as I told you, that treatment should be it's come to the primary treatment. After that, we come to the secondary treatment. The first primary treatment of the German measles is antibiotic to reduce the fever. Okay. Antibiotic should be given, but still it is treated to secondary infections. Okay, then antiviral drugs such as acyclovir, and then sedative such as promethazine to reduce the discomfort or to relieve the discomfort. भी मैंने आपको बताया कि मेडाल नहीं देते हैं, तो नहीं देंगे, बच्चों को नहीं दिया जाता है. Okay, and then antihistamine drug to reduce or to relieve pain, itching and swelling, and after that given bath daily. Every day it should be because it is a slow infection, slow viral infection. It is a 3-day measles infection, so that ना हमें hygiene maintain करना पड़ेगा. और ये क्या करता है, जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनके अराउंड में अपनी और कॉलोनीज बनाने की कोशिश करता है, सो दैट हमें वहाँ पर कैलामाइन लोशन हमेशा अप्लाई करके रखना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डेली बाथ लेना पड़ेगा. ओके, नेल शुड बी कट एंड शॉर्ट, मेंटेन हाइजीन हमेशा मेंटेन करके रखना है. बेड रेस्ट के लिए प्रॉपर बोलना है, और चाइल्ड को स्कूल के लिए नहीं भेजना है. ओके, these are the treatment of rubella. Now we have come to the prevention and control of rubella. So the prevention of and control is the first prevention is isolation, as I told you in the previous diseases. सबसे पहला है कि इन्फॉर्म करना है कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि जो उस बच्चे के केयर टेकर हैं और जो उस बच्चे के कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना है. आफ्टर दैट एक्टिव इम्यूनाइजेशन होना चाहिए. यहाँ पे भी MMR वैक्सीन का ही यूज़ होगा. MMR स्टैंड फॉर मीज़ल्स, मम्स, रूबेला. ठीक है, तो इन तीनों डिजीज़ का एक ही वैक्सीन होता है, MMR वैक्सीन जिसको बोलते हैं हम. आफ्टर द बर्थ हम उसको इम्यूनाइज्ड करवाएं आफ्टर 6 मंथ. तो यहाँ पे सबसे पहला प्रिवेंशन आएगा inform the concerned authorities. Then second is active immunization
with varicella vaccine. Okay, so this is the immunization with vaccine. So here we see the prevention. एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है ना. एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है किसका? MMR वैक्सीन का एज वेल एज दी वर्सेला वैक्सीन. ठीक है, दोनों ही वैक्सीन इम्पॉर्टेंट है इस कंडीशन में, जिससे कि इसका ग्रोथ रुक जाए और ये अपनी एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सके. एंड देन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करना है और चिल्ड्रन को जो है आइसोलेट करके रखना है. So these are the prevention of rubella. Now let's discuss again, let's summarize the topics. That's all for today. Let's summarize the topic. Rubella is a German measles, it is also known as rubella, or 3 days measles vaccine. It is a definition of rubella. This is a slow viral infection. It is a viral infection characterized by the enlargement of cervical lymph node, and it most of common in older children. It is caused by myxovirus. Its incubation period is 14 to 21 days. The mode of transmission of rubella is droplet infection, contact with infected person, sharing food item with infected person, इन्फेक्शन फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन ब्लड स्ट्रीम की वजह से बच्चों को भी हो जाएगा. देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इट इज़ सॉलोइन और एंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड. द सेकेंड वन इज़ रूबेला रैश बीइंग्स इन द फेस एंड स्प्रेड. फर्स्ट साइन ऑफ इलनेस that is noticed by their parents, and malaise, mild fever, cough, muscles which spread from face and trunk, and extremities, headache, body ache, loss of appetite, mild conjunctivitis भी होगा, running nose होगी, pain and swelling भी होगा. And then treatment is antipyretic should be given to reduce the fever. Antibiotics that should be given, but it is in a secondary infection. and antiviral drug जैसे कि एसाइक्लोविर देना है, सेडेटिव देना है, प्रोमेथाजाइन जैसे ड्रग्स को, और एंटीहिस्टामिन्स ड्रग देना है. बात के लिए रोज़ बोलना है. लोकल एप्लीकेशन ऑफ लोशन इज़ कैलामाइन लोशन लगाना है. नेल्स शुड बी कट. मेंटेन हाइजीन, प्रॉपर बेड रेस्ट, एंड डोंट अलाउ चिल्ड्रन टू गो टू द स्कूल. And then prevention is inform the concerned authorities, active immunization and of MMR as well as varicella vaccine, and isolation of the children. So that's all for today. Tomorrow we'll continue about the acute respiratory tract infection and chicken pox. Thank you class.